Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to start a new topic, types of the triangles. So let's see. Based on the lengths of the sides and measures of the angles, triangles are divided into different types. तो पहले हम लोग sides में देखते हैं. स्केलिंग ट्रायंगल यानी 3 sides होते हैं एक ट्रायंगल में. All the 3 sides are not equal. That means if it is a triangle ABC, AB is not equal to AC, AC and AB are not equal to BC. That means all the 3 sides are not equal to each other. So scaling triangle, none of the sides of the triangles are equal. The 3 angles of a triangle are also not equal. Because the sides are not equal, so the angles also are not equal. ठीक है? Move on to next, that is isosceles triangle. देखते हैं isosceles triangle होता क्या है. 2 sides are equal. यानी ये एक ट्रायंगल है जहाँ पे ABC, ये ट्रायंगल ABC है जहाँ पे AB इज इक्वल टू AC एंड BC इज नॉट इक्वल टू AC और AB. सो 2 साइड्स इक्वल हैं, थर्ड साइड इज नॉट इक्वल टू देम. सो दिस इज कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. 2 साइड्स आर इक्वल. फर्स्ट. सेकेंड इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्योंकि AB और AC इक्वल है तो AC साइड जो है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B, और AB का जो अपोजिट एंगल है वो है C. सो एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल टू ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल टू A. ठीक है, तो ये हो गया स्केलिंग और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में. नेक्स्ट जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. नाम से ही पता चलता है कि इक्वल ही होगा. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. इक्विलैटरल यानी ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ऑल द 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल AB, BC एंड AC. सो AB के ऑपोजिट C है, AC के ऑपोजिट B है और BC के ऑपोजिट A है. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू AC एंड ऑल द 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. 180 upon 3 क्या होगा, 60. That means each angle will be equal to 60 degrees. ठीक है, तो ये हो गया based on their sides, lengths of the sides. Now we'll see on the based on the measure of angles. Types of triangles based on the measure of angles. First one is acute angled triangle. Acute यानी less than 90 degrees. तो acute angled triangle is a triangle with all the 3 angles less than 90 degrees. Acute angled यानी क्या होगा, less than 90 degrees होना चाहिए. Because the name itself acute angle होता क्या है, 90 degrees से less. So यहाँ पे acute angled triangle यानी तीनों एंगल जो होगा वो less than 90 degrees ही होने चाहिए. For example यहाँ पे एक फिगर दिया है ट्राइंगल का जहाँ पे एंगल A is 70, एंगल B is 50 and angle C is equal to 60 degrees. So all the 3 angles are less than 90 degrees. So this triangle is known as acute angled triangle. Next क्या है, okay, next is right angled triangle. Right angle यानी क्या होगा, 90 डिग्रीज. यानी कि एक साइड जो है वो 90 डिग्रीज होना चाहिए. लेट्स सी व्हाट इट इज. राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विथ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल and is opposite to 90 degrees. Yes, of course, because angle opposite to side opposite to this angle should be the largest, क्योंकि ये 90 डिग्री से सबसे ज्यादा है बड़ा एंगल triangle and is opposite to 90 degrees angle. Sum of the other 2 angles should be 90 degrees. Why? Because sum of the all the 3 angles should be 180 degrees. तो एक का अगर 90 हो गया तो बाकी दोनों का मिला के 90 डिग्रीज होना चाहिए. So if we see this figure here, 90 degrees angle B है. So angle A and angle C should be what? Less than 90 degrees each. So यहाँ पे angle B A is equal to 50 degrees, angle C is equal to 40 degrees. Okay? और ये AC जो है वो एक hypotenuse है which is the longest side because 90 degrees is the largest angle
So opposite to this angle should be the longest side, which is known as hypotenuse. Note, इसमें note है ये, क्या है वो? A triangle can have only one right angle. Obviously, because एक अगर 90 डिग्रीज हुआ तो दूसरा 90 डिग्रीज हो ही नहीं सकता, because there should be two more angles. So वो एंगल डिवाइड करेगा 90 डिग्रीज को. Either it could be 45, 45, 30, 60. So sum of the three angles should be 180 degrees. So a triangle can have only one right angle. ठीक है? Move on to next type of triangle is obtuse angled triangle. Obtuse यानी more than 90 degrees. So obviously एक जो angle होगा वो 90 से above होना चाहिए. So let's see what it is. Obtuse angled triangle होता क्या है? Triangle in which one angle is greater than 90 degrees. Yes. तो यहाँ पे फिगर देखिएगा. Angle B है 130 degrees which is greater than 90 degrees. And angle A is 30, angle C is 20 degrees. तो sum of these three angles should be 180 degrees. तो अगर एक angle 130 है तो दूसरे का sum क्या होगा? minus 180, that is 180 minus 130, जो भी बचता है वो यहाँ पे दोनों के sum उनका होना चाहिए. तो 180 minus 130 is 50, तो 50 को डिवाइड करना पड़ेगा. और यहाँ पे देखिएगा एंगल A is 30, एंगल C is 20 डिग्रीज. दैट मीन्स द सम ऑफ दिस एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. और एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए जो 130 डिग्रीज है. और ट्रायंगल नोट है यहाँ पे. और ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्वियसली क्योंकि अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि अबाव 90 डिग्रीज है, तो बाकी का जो बचा है वो दोनों एंगल में डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल. आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसेलेस यानी दो साइड इक्वल होने चाहिए. राइट एंगल यानी दो साइड्स इक्वल होने के बाद एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होना चाहिए. सो लेट्स सी. Isosceles right angle triangle is a right angled triangle with the shorter two sides equal. Acute angles are equal in this case. Each acute angle is equal to 45 degrees. Yes, obviously. क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ABC एक ट्रायंगल है. ABC जहाँ पे B एंगल B जो है वो 90 डिग्रीज है. AB इज इक्वल टू BC यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए बिकॉज इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स होने चाहिए. तो 90 डिग्रीज ये है तो 90 डिग्रीज डिवाइड करना पड़ेगा दोनों में. दैट मीन्स 90 अपॉन 2 इज 45 डिग्रीज. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. AB इज इक्वल टू BC. So this is nothing but a isosceles right angle triangle. आइसोसेलेस क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं. राइट एंगल यानी दोनों साइड जो है वो फॉर्म करते हैं 90 डिग्रीज को इसके. ठीक है. मूव ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. व्हाट इज अ मीडियन? We'll see what is a median here. Median of a triangle is a line segment drawn from a vertex to the midpoint of the opposite side. A triangle has three medians. Obviously because तीन vertex रहेंगे तो तीनों vertex से एक एक लाइन दूसरे साइड को डिवाइड करेगी इक्वल पार्ट में. तो तीन मीडियंस होने चाहिए. तो यहाँ पे देखिएगा इस फिगर को देखते हैं. फर्स्ट ABC is a triangle. Median of a triangle is a line segment drawn from a vertex to the midpoint of the opposite side. तो ये एक vertex है C. तो इस C से N ड्रॉ किया है which divides AB into two halves. That means AN is equal to BN and CN is the median. ये vertex है और CN is the median और AB जो साइड है opposite to this angle it divides this side into two halves. तो जब भी two halves करता है कोई भी सेगमेंट अपोजिट साइड में उसे मीडियन कहा जाता है. सो हियर AC is the median. In the next case यहाँ पे देखिएगा from A the segment
AN divides BC. BC is the opposite side. So AN है यहाँ पे मीडियन which divides BC into 2 halves. वैसे ही अभी B से B is the vertex and BN is the median which divides AC into 2 halves. Okay. तो नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल. ऑल्टीट्यूड होता क्या है? ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो एक ट्रायंगल है ABC जहां पे हम लोगों ने इस ट्रायंगल में A इज द वर्टेक्स वी हैव कंसिडर्ड और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विच इज AM विच इज परपेंडिकुलर टू BC. BC इज द ऑपोजिट साइड. तो यहाँ पे AM जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड BC पे, दिस इज नोन एज द ऑल्टीट्यूड. ओके. So altitude of a triangle is perpendicular drawn from a vertex to the opposite side of the triangle. A triangle has 3 altitudes, one corresponding to each vertex. यहाँ पे देखिएगा A, B, C 3 वर्टेक्स होंगे हर एक ट्रायंगल में. तो हर एक वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो उसे ऑल्टीट्यूड कहा जाएगा. जैसे कि B, यहाँ पे BN कर सकते हैं, CD कर सकते हैं. तो दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स विच आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड. ठीक है. तो यहाँ पे नॉर्मली तीन ऑल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्रायंगल में. दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ 3 ऑल्टीट्यूड्स. ओके. करस्पॉन्डिंग टू ईच वर्टेक्स. There is a special case here. In case of obtuse triangle, the foot of the altitude of a triangle will be on the extended opposite side. Why? Because in an obtuse angle triangle, one angle is an obtuse angle. Obtuse यानी more than 90 degrees. तो obtuse angle क्या होगा? तो ABC यहाँ पे देखिएगा ABC is a triangle. Angle B is an obtuse angle. तो यहाँ पे तो हम लोग altitude ड्रॉ नहीं कर सकते. तो इसको BC को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा अप टू M और A के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये BC को एक्सटेंड करने के बाद ही हम लोगों को ऑल्टीट्यूड मिलेगा AM. ओके. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स. ठीक है. थैंक यू सो मच.